submitted in school exactly? Okay, so yesterday we learned that Charlie has discovered third level. It's a part of his imagination, his fantasy, his illusion. He's also consulting his friend Sam, who is a therapist. The friend Sam tells him that the reason why he has discovered third level, the reason why he has created a third level in his mind is because he wants to escape from the modern world. The modern world is full of insecurities, fear, wars, and worries. Since he lives in such a hectic environment, such a busy environment, that is why the protagonist Charlie wants to escape from the reality. Escape from the reality is the key word here. यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में यही चीज की है, that escape from reality. Then they further analyze that the stamp collecting hobby of Charlie. चार्ली की एक और हॉबी है, दैट इज कलेक्टिंग स्टैम्प, एंड दिस इज बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी एज वेल. वाई डज एनी वन कीप हॉबी? हम हॉबी क्यों करते हैं? जब भी मॉम डैड परेशान हो रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? यूट्यूब पे कुछ देख लो, बाहर घूम के आ जाओ, अपने फ्रेंड से मिल के आ जाओ, किटी पार्टी ज्वाइन कर लो. तो ये सारी चीजें उनको इंडल्ज रखने के लिए, इंग्रोस रखने के लिए, सो दैट so that of course they can escape from whatever harsh realities, hard situations, adverse conditions, adverse scenarios they are facing in their life. तो उसने बोला, ऑथर ने बोला, चार्ली ने बोला, सॉरी, दैट okay, if my stamp collection habit or hobby is an escape from reality, तो मेरे ग्रैंडफादर ये चीज क्यों करते थे? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये चीज क्यों करते थे? वो भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे. क्या उनको भी रियलिटी से एस्केप होना था? व्हाई डिड दे वांट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी? नाउ वी आर रीडिंग द फर्दर क्वेश्चन. सर, आप मुझे आपको कॉल करना था, मैं कब कर सकती हूँ? आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर यू कैन कॉल मी. All right. Anyway, here's what happened at Grand Central Station. Now the guy Charlie is taking us back to the incident, back to the event when he actually saw the Grand Central Station. Anyway, here's what happened. One night last summer, it has been significant amount of time passed since he went into the third level. काफी समय बीत चुका है third level को discover किए हुए. I work late. Of course he was working late. New York है तो work late तो बनता है. I work late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Of course there are different modes of transportation. बहुत सारे लोग बस लेते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन्स लेते हैं. तो of course since चार्ली वॉज लेट, चार्ली वॉज डिलेड, तो उसको लगा कि अगर मैं ट्रेन लूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा. यहाँ पे सबवे इज नोन फॉर द ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबवे यूज किया गया है. जैसे मुंबई के लिए लोकल्स यूज करते हैं, वैसे न्यूयॉर्क में ट्रेन के लिए सबवे यूज करते हैं. So the subway from Grand Central, because it is faster than the bus. Grand Central is the name of the entire station. बहुत बड़ा स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वहां की ट्रेन्स को सबवे बोलते हैं, और वहां पर अलग अलग लेवल्स हैं. अंडरग्राउंड में जाने के लिए अलग अलग लेवल्स हैं. Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie. अब चार्ली बोल रहा है कि I have no idea why this incident happened to me. भाई जितनी भी हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, एवरीथिंग हैपेंस टू अ नॉर्मल आम आदमी. एक ऑर्डिनरी गाय के साथ ही सारे इंसिडेंट होते हैं, और क्योंकि उसके साथ ही होते हैं इसलिए वो इंसिडेंट स्पेशल होते हैं. कि मैं रास्ते से जा रहा था, आई वॉज वॉकिंग एंड सडनली समवन रॉब्ड मी, और उस चोरी के चक्कर में मैं उसका पीछा किया, एंड ऑल द मूवी बिगिंस. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आई सॉ अ गर्ल, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट. तो ये सारी चीजें आम आदमी के साथ ही होती है. तो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 years. He is a 31-year-old guy. मतलब he is quite an adult. अपने adult life में है, वो married life में है. And what is happening? And I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band.
टैन गैबर्डीन सूट, गैबर्डीन जो है वो एक टाइप का मटेरियल होता है, और टैन मतलब डार्क इन कलर, टैन मीन्स डार्क कलर का, ब्लैक कलर का उसने सूट पहन रखा था चार्ली ने, एंड ही वोर अ स्ट्रॉ हैट, स्ट्रॉ हैट जो आपके इसमें फोटो में दिख रहा है, आपकी बुक के पिक्चर में गिवन है, दैट्स द स्ट्रॉ हैट, यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ हैट विच इज कॉल्ड स्ट्रॉ हैट, और उसमें एक फैंसी बैंड लगा हुआ था, एक फैंसी बैंड पहना हुआ था ऑथर ने, सॉरी चार्ली ने, ऑथर एंड चार्ली आर डिफरेंट, आई शुड नॉट मिक्स देम ऑफ कोर्स. So there was this hat was there, और यहाँ पे जो बीच में जो ये रिबन लगता है, ये जो बैंड लगता है, that was there, a fancy, a very what we can say expensive band was there. I passed a dozen men, approximately. He passed few men, of course, because he was in railway station, who looked just like me. Means he was wearing a professional attire. अगर आप क्या बोलते हैं न्यूयॉर्क में जाएंगे और everyone is getting out of their offices, ऑफिस में सब फॉर्मल्स पहनते हैं. They wear suit, boot and hat. Of course, when he is getting out of his office, he's going towards Grand Central Station, going towards the railway station. जितने भी लोग उसको मिलेंगे वो सब उसी के टाइप के होंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो फॉर्मल पहनेंगे, सूट पहनेंगे, हैट पहनेंगे. So I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. तो अब यहाँ पर वापस से चार्ली क्लैरिफाई कर रहा है that my friends are suggesting, my friend the therapist, the psychiatrist is suggesting कि मैंने थर्ड लेवल क्यों क्रिएट किया, because I wanted to escape from the modern world. तो चार्ली is clarifying that I did not want to escape from anything. मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था, लुइसा के पास जाना चाहता था. दैट वाज माय मोटो, दैट वाज माय एम. But what happened? I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Again, it's the name of a place, it's the name of a location, you can say, Vanderbilt Avenue, and went down the steps to the first level. Vanderbilt Avenue से मुझे उसका first level मिल गया Grand Central Station का. वहां से मैं नीचे गया, नीचे जा रहा था, and what happened, where you take trains like 20th century, 20th century में trains नीचे से लेते हैं. बहुत सारे रेलवे स्टेशन, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनमें आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है. मुंबई में आपको ऊपर जाना पड़ता है, आपको स्टेयर्स क्लाइंब करना पड़ता है, बट दिल्ली के मेट्रोज में आपको अंडरग्राउंड चलना पड़ता है. तो वैसे ही 20th सेंचुरी में जैसे फर्स्ट लेवल में के लिए नीचे जाना पड़ा, वैसे चार्ली गया. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और वापस नीचे गया सेकेंड लेवल के लिए. ऑफकोर्स फर्स्ट लेवल, देन सेकेंड लेवल, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. This is the moment he starts imagining things. This is the moment he starts imagining things. एक आर्च्ड डोरवे था. आर्च्ड डोरवे मतलब ये वाला, इस तरह का डोरवे वहां आया. मतलब ऐसा समझो, ऐसा समझो, वो एक सीढ़ी उतर के आया, फिर वो दूसरी सीढ़ी उतरा. यहाँ पे था फर्स्ट लेवल, यहाँ पे था सेकेंड लेवल. अब सेकेंड लेवल पे उसको कहीं पे ये आर्च्ड डोरवे दिखा होगा. वो डोरवे थोड़ा छोटा था और उसकी हाइट थोड़ी बड़ी थी. तो व्हाट ही डिड, ही डग्ड. डग्ड मींस व्हाट, ही टिल्टेड हिज हेड डाउनवर्ड्स. जब हम अपना सिर झुका के हम आगे बढ़ते हैं, जब हम सिर झुका के आगे बढ़ते हैं, तब उसको बोलते हैं डक. डक्स क्या होती है, वो अपनी सिर झुका के ही स्विमिंग करती हैं. डक करना मतलब नीचे झुकना, डक के जैसे नीचे बन जाना, दैट इज डकिंग. तो देयर वाज अ आर्च्ड डोरवे, और उसमें से अपना सिर नीचे झुका के वो डक करके एंटर हुआ. एंड व्हाट हैपेंड, एंड गॉट लॉस्ट. ही गॉट लॉस्ट ओवर देयर. बाद में वो बोलते दैट इज इजी टू डू. वो बहुत इजी है. क्यों है? बिकॉज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है. आप देखेंगे इवन मुंबई के स्टेशन इतने बड़े होते हैं आपको नहीं पता चलता. आजकल तो चलो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेसिफिकेशन की ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाली ट्रेन आने वाली है, बार बार अनाउंसमेंट होते रहते हैं. बट 20th सेंचुरी विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 years अगो, इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज हमारे पास में नहीं थी.
तो जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए नहीं थे, तो उसने बोला दैट इज वेरी इजी टू डू, अगर हम वहां खो भी जाते हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स वेरी ऑर्डिनरी थिंग. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. अब वो बोल रहा है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बार गया हूँ. Infinite times I have been there, hundreds of times I have been there, but I'm always bumping into, crashing into, colliding into, crashing, colliding, भिड़ना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, भिड़ना. तो मैं बार बार नए नए डोरवेज, नए नए स्टेयर्स, नए नए कॉरिडोर्स से मिलता रहता हूँ. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. This line is also important. ये वाला, इससे पता चलता है कि दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम चार्ली गॉट लॉस्ट इन हिज ओन फैंटेसी, in his own universe, in his own world, in his own location and place and time. पहले भी वो खुद बोल रहा है कि बहुत बार ऐसा होता था कि मैं नए नए दरवाजे, नए नए सीढ़ियां और नए नए कॉरिडोर्स को एनकाउंटर करता. एक बार क्या हुआ, आई गॉट इन टू टनल, वो किसी टनल में गया होगा, कोई बड़ा सारा टनल था, एंड टनल में क्या हुआ, अबाउट अ माइल लॉन्ग, इट वॉज अ माइल लॉन्ग टनल. आप सोचो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 1 मील जितना बड़ा टनल कहाँ से आएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन. उसने वो सिनेरियो भी इमेजिन किया होगा कि मैं एक दिन टनल में चला गया, वो टनल 1 मील बड़ा था, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. मतलब ऐसा इमेजिन करो कि चार्ली एक दिन चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग. अब वो चलते 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 अचानक से उसके दिमाग में एक नया यूनिवर्स क्रिएट होने लग गया, एक नई एक नई फैंटेसी क्रिएट होने लगी, नई लोकेशन क्रिएट होने लग गई. उस लोकेशन में क्या हो गया, इन दैट लोकेशन ही वाज एंटरिंग अ टनल. वो टनल में एंटर हुआ, बहुत बड़ा टनल था. द टनल वाज 1 माइल लॉन्ग. एंड जब उसकी फैंटेसी खत्म हुई, जब उसका वो सपना टूटा, जब वो अपने ब्रेन से बाहर निकला, तब क्या हुआ, ही फाउंड हिमसेल्फ इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल. वो चलता चलता इमेजिन करता हुआ अपनी फैंटेसी में रूजवेल्ट होटल पहुंच गया. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. और एक बार क्या हुआ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 blocks away, मतलब 3 ब्लॉक की दूरी पर मैं 46 स्ट्रीट पे चला गया, एक ऑफिस बिल्डिंग में चला गया. Again, he was imagining, he was creating a whole another world in his own mind, in his own brain. क्या सेंट्रल स्टेशन में ऐसा टनल होना पॉसिबल है? नहीं है. क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ऐसा डोरवे पॉसिबल है, आर्च डोरवे? नहीं है. क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल पॉसिबल है? नहीं है. ये सारी चीजें उसके इमेजिनेशन को शो करती हैं कि कहीं ना कहीं चार्ली वॉज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी. Yes. Any doubt you have? Are yes or no? No doubt? बढ़े आगे? All right. All right. Let's proceed further. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. Again, वो बोल रहा है कि मुझे कभी कभी लगता है ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, pushing out new corridors and staircases like roots, that it is growing new roots, new staircases, new doorways, new corridors. जैसे एक ट्री जो है जब ग्रो करता है तब उसके नए नए रूट्स, नए नए ब्रांचेस निकलते रहते हैं, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, इनहांस हो रहा है. ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन. There's probably a long tunnel that nobody knows. Ayush, turn off your video. There's probably a long tunnel that nobody knows
about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many. अच्छा चलो धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया. अब चार्ली बोल रहा है, ही इज जस्ट गेसिंग, ही इज जस्ट सजेस्टिंग. क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या गेस कर रहा है कि हो सकता है, perhaps probably there's a chance, a long tunnel that nobody knows about feeling, it's underway under the city right now, it's way under the city right now. क्या हुआ कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ा टनल जो है वो सिटी के नीचे, ये यहाँ ऊपर सिटी है, यहाँ बिल्डिंग्स हैं, यहाँ घर बने हुए हैं, और इसके नीचे एक बहुत बड़ा टनल जो है वो भर रहा है. There's a tunnel which is going under the city right now on its way to the Times Square. Times Square, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी है तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में टाइम्स स्क्वायर आता है. एक बहुत बड़ा चौराहा है, वहां पर बहुत बड़ी एलईडी टीवीज लगी हुई है, बहुत ज्यादा, और वहां पे एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत ज्यादा लेवल तक होते हैं. दैट इज टाइम्स स्क्वायर. यू कैन गूगल इट आउट, व्हाट इज टाइम्स स्क्वायर. कैप्टन अमेरिका अगर किसी ने देखी है, तो जब कैप्टन अमेरिका अपनी लंबी नींद से जगता है बाद में, तो वो टाइम्स स्क्वायर की यहीं पे जगता है. तो दैट इज टाइम्स स्क्वायर. एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. सेंट्रल पार्क अगेन, इट्स अ वेरी वेरी फेमस प्लेस इन न्यूयॉर्क. टाइम्स स्क्वायर और सेंट्रल पार्क बहुत ज्यादा फेमस प्लेसेस हैं. आज के डे और टाइम में तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं क्राउड के मामले में और पॉपुलैरिटी के मामले में. दे आर वेरी famous. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into. Again, Charlie is making a theory. Charlie is suggesting something कि हो सकता है टाइम्स स्क्वायर के नीचे, सेंट्रल पार्क के नीचे, पूरी न्यूयॉर्क सिटी के नीचे एक बहुत बड़ा टनल चल रहा हो, और मैं उसी टनल में घुस गया, मैं उसी टनल में एंटर हो गया. नाउ दिस लाइन इज ऑफ वेरी मच सिग्निफिकेंस. फॉर मेनी इयर्स Grand Central Station has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into. क्या मतलब हुआ? Suppose this is your home, this is your home, and this is your office. ये ऑफिस का बिल्डिंग है आपका, राइट? नाउ आप 9 o'clock यहां से निकलते हैं एंड यू रीच देयर एट 6 o'clock. और इस बीच का डिस्टेंस आपने कवर कैसे किया? द डिस्टेंस वॉज कवर्ड बाय ट्रेन, राइट? दिस ट्रेन हेल्प यू कवर द डिस्टेंस. अब मुझे ये बताओ, घर में टेंशन होता है, घर में स्ट्रेस होता है, घर में आर्ग्यूमेंट्स ऑल्टरकेशंस होते हैं, डिप्रेशन घर में आता है, आता है. ऑफिस का स्ट्रेस, ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइंस का प्रेशर, बॉस की डांट खाना, कलीग्स का बिट्रेयल, क्लाइंट्स से सुनना, ये सारी चीजें ऑफिस में चलती रहती हैं. तो टेंशन घर पे भी है, टेंशन ऑफिस में भी है. टेंशन किधर नहीं है? इस दौरान नहीं है. This medium or this pathway or this railroad helps so many thousands of people to escape from their tension wala place, right? ये समझ में आ रहा है? जब आप ट्रेन में एंटर करते हो, यहां से अगर सपोज आप ऑफिस से घर जा रहे हो, तो आपने सारी टेंशन ऑफिस की यहां छोड़ दी और आप ट्रेन में बैठ गए. ये जो ड्यूरेशन है, दिस ड्यूरेशन, देयर इज नो वन टू बॉदर यू. अगर आपने मुंबई की लोकल्स में सफर किया है, ट्रैवल किया है, यू विल नोटिस लोग इतने थके हुए होते हैं, इतने टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड होते हैं, बट स्टिल, और इवन इतनी भीड़, यू विल नॉट इमेजिन कितनी भीड़ रहती है मुंबई की लोकल्स में, बट स्टिल व्हेन दे एंटर इनटू द ट्रेन, दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि भाई फाइनली हमारा घर, काम का प्रेशर काम के यहाँ पे है, अब हम घर जाएंगे. तो दे लिसन टू म्यूजिक, they play their Candy Crush, they play their PUBG, they watch their movies or shows or Netflix, whatever they want. So this medium is a medium of escape. The railway station, the Grand Central Station, is a medium of escape, is a medium of exit from all their stressful life
फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां पे कोई डाउट है क्या? Why is Grand Central Station a medium for escape for thousands of people? Because so many people are tired at their homes or at their offices. So when they take a train from one place to another, they leave all their worries, they leave all their anxieties, they leave all their tension at that place, and they board the train tension free. That is why the Grand Central Station has been recognized as a medium of escape by Charlie. तो मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू। तो अब चार्ली बोल रहा है कि इतने सालों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लोगों के एस्केप का जरिया बना हुआ है, तो हो सकता है मैं भी इसी प्रकार किसी एक टनल में चला गया होऊंगा, जो टनल मुझे रियलिटी से एस्केप के लिए ले जा रहा है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माय साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। बट मैंने मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को ये आइडिया नहीं बताया। सर बट चार्ली थर्ड रूट पे जाता है और वहां तो कोई ट्रेन आती नहीं थी, तो वो ये बात कैसे बोल सकता है? एसपी मोहित अग्रवाल, आपको नहीं पता है कि थर्ड लेवल पर ट्रेन आती है या नहीं आती है? अभी तो उसका डिस्क्रिप्शन चालू हुआ है, अभी हम देखते हैं वहां ट्रेन आती है या नहीं आती है। द कॉरिडोर अब यहां से वापस स्टार्ट हुआ है। अगेन द पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। उसकी स्टोरी कि मैं थर्ड लेवल में कहां से था, यहां तक तो सिर्फ उसकी थ्योरी चल रही थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, और उसने ये थ्योरी अपने फ्रेंड को अभी तक नहीं बताई थी। कौन सी थ्योरी? दैट ग्रैंड सेंट्रल इज द मीडियम ऑफ एस्केप, अ वे ऑफ एस्केप। तो द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ एंगल कर रहा था, लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर रहा था, झुका हुआ था। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, स्लैंटिंग अगेन टिल्टिंग, TILT, टिल्ट करना, झुकना, झुकना जिसको हम बोल सकते हैं इंक्लाइन करना, slanting downward, and I thought that was wrong. चार्ली को लगा कि यार ये वाला कॉरिडोर तो इधर होना ही नहीं चाहिए, वट एवर वे, वट एवर पाथ आई एम टेकिंग, इट इज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। फिर भी मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। यहां से उसकी इमेजिनेशन ने काम करना चालू कर दिया, यहां से उसकी इमेजिनेशन स्टार्टेड डूइंग द वर्क। कौन सा वर्क? ये नए नए कॉरिडोर्स क्रिएट करना, नए नए pathways create करना। All I could hear was the empty sound of my own footsteps. Of course, in his own universe, in his own creation, he can do whatever he want. अगर वो चाहे तो वो अकेला हो सकता है, अगर वो चाहे तो 100 आदमी अपने आप हो सकते हैं। हम जब ड्रीम्स देखते हैं तो बहुत सारे ड्रीम्स में हम अकेले होते हैं। वी आर वॉकिंग इन द डार्कनेस, वी आर वॉकिंग इन द माउंटेन्स, वी आर वॉकिंग ऑन द ओशन। सारे ड्रीम्स में हम अकेले होते हैं, और बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कजिन्स के साथ में होते हैं। तो दैट इज आवर ओन इमेजिनेशन। Then I heard the sort of a hollow roar ahead, that means open space and people talking. Hollow means empty, empty. Roar means noise. तो वहां पर उसको एक तरह की आवाज आई। जब हमें दूर से किसी चीज का शोर मचता है तो ऐसा लगता है कि हॉलो रोर हो रहा हो। देयर इज अ एम्प्टी नॉइस कमिंग, कि वहां पर कोई एम्प्टी स्पेस है जहां पर लोग बातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। Ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. अब टनल जा रहा था और अब लेफ्ट की ओर टर्न हो गया। अगेन दिस इज एन इमेजिनेशन, ऐसा कोई टनल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था। Turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on third level of at Grand Central Station. एक और स्टेयर्स ली उसने, एक स्टेयर ली तब तो फर्स्ट लेवल था, दूसरी स्टेयर पे सेकेंड लेवल था, और अभी थर्ड स्टेयर्स पे थर्ड लेवल आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। चार्ली को लगा कि हो सकता है कि मैं कॉरिडोर्स बदलते बदलते इधर उधर आते आते सेकेंड लेवल के ही कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला गया, बट ऐसा नहीं था। I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. अब यहाँ पे he is describing the infrastructure. He is describing the construction of the ticket windows,
of the platform, of the train gates and information booth. कैसे थे? they were made up of wood. आजकल के इंफॉर्मेशन सेंटर्स किसके बने हुए रहते हैं? दे आर पर्टिकुलर ऑफिस होते हैं, वो ब्रिक्स के बने हुए होते हैं, सीमेंट के बने हुए होते हैं, आयरन के बने हुए होते हैं. बट उस टाइम के इंफॉर्मेशन बूथ्स किसके थे? वुड के बने हुए थे. एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeve protectors. Eye shade, glasses, glasses, goggles बोल सकते हैं, glasses बोल सकते हैं, spectacles बोल सकते हैं. तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन बूथ पे जो बंदा बैठा हुआ था, जो ऑफिसर बैठा हुआ था, he was wearing glasses and long black sleeve protectors. कोई तरह का कुछ woolen material होगा, this protectors. The lights were dim and sort of flickering. 20th century में तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, बट क्या 19th सेंचुरी में सबके पास इलेक्ट्रिसिटी थी क्या? नहीं. वो लोग क्या यूज करते थे? दे यूज टू बर्न फ्लेम्स एंड कैंडल्स. तो जब कैंडल्स को हम जलाते हैं तो क्या वो फ्लिकर नहीं करता? फ्लिकर करना मतलब झपकना, फ्लक्चुएट होना, झपकना, दैट इज फ्लिकरिंग. तो वहां पर मशाल जली हुई थी, वहां पर कैंडल्स जली हुई थी. जो रेलवे स्टेशन था उसमें ये सारी चीजें थी, और द कैंडल्स और द लाइट्स वर फ्लिकरिंग. Then I saw why they were open flame gas lights. Gas lights होते थे, लालटेन्स होती थी, lanterns बोलते हैं वैसे लालटेन को. गैस लाइट समवॉट लालटेन जैसा ही होता है, बट वो गैस से चलता है. लैंटर्न जो है वो ऑयल से चलता है, और गैस लाइट गैस से चलता है. मैं बताता हूँ कैसा स्ट्रक्चर होता है आपके यहाँ पे. एक पॉट जैसा स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ पे आपका एक कंटेनर होगा, और यहाँ पे आपका बल्ब होगा. तो ये होगा गैस, ये होगा ग्लास, और ये होगा बल्ब. तो ये ग्लास के अंदर बल्ब रहता है प्रोटेक्टेड, और ये गैस के थ्रू ये बल्ब जलता है, और ये कभी कभी फ्लिकर होता रहता है, कभी कभी झपकता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है. ये फुल्ली लिट नहीं होता है, फुल्ली लिट नहीं होता है. जैसा कि हमारे ट्यूबलाइट्स, हमारे आज के बल्ब होते हैं, वैसा नहीं होता था. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट. मैंने देखा हुआ है, हमारे घर पे था ये काफी साल पहले. तो आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे वो. सारा वहां का जो मॉडल था वो बहुत ही पुराना था. दीज आर ऑन द पिलर्स ऑन द रोड. just saw on Google. All right, pillars on the road. अभी भी I guess pillars on the road पे भी ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स आने लग गए हैं. गैस वाली चीजें आजकल नहीं रही है. आपने देखा है स्लीव प्रोटेक्टर्स. अरे स्लीव प्रोटेक्टर्स मतलब उसने फुल स्लीव्स पहन रखा था, फुल स्लीव्स वाला पहन रखा था, और उसमें भी इस तरह के जो स्लीव प्रोटेक्टर्स आते हैं वो होगा. उस टाइम का कोई आउटफिट रहा होगा 19th सेंचुरी का, दैट इज स्लीव प्रोटेक्टर्स. All right, moving further, there were brass spittoons on the floors. अच्छा, spit करना मतलब क्या होता है? Spit मतलब थूकना. When you put out your saliva, that is spitting. I didn't pass a soul. I didn't pass a soul. Soul मतलब आत्मा. यहाँ पर आत्मा की जगह it's referred to a person. That while he was going through the tunnel, while he was passing through the tunnel, he did not come across any single person. He did not encounter any single person. He did not confront any other soul, any other person. समझ में आया दर्शन? उसको कोई और जना वहां पर नहीं दिखा. ऑलराइट, तो देयर वर ब्रास स्पिटून्स. पुराने टाइम पे, चलो हमारे यहाँ पे तो आजकल भी टोबैको और ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, बट उस टाइम पे अमेरिका में 19th सेंचुरी में लोग जो है वो टोबैको च्यू करते थे, और उसके लिए जगह जगह थूकने के लिए ब्रास स्पिटून्स. आपने ब्रह्मा जी का कमंडल देखा हुआ है? इस टाइप से कुछ होता है कमंडल. तो इस तरह के कंटेनर्स रखे हुए थे जहां पर लोग अपने टोबैको का स्पिट जो है वो डिपॉजिट कर सकें. दैट इज स्पिटून्स. देखो 19th सेंचुरी में भी अमेरिका कितना साफ सुथरा हुआ करता था.
कितना क्लीनलीनेस के लिए डेडिकेटेड था। आज भी हम हमारे पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो पब्लिक प्लेसेस में हमारे आज भी कहीं ना कहीं दीवारों पे बहुत थुका हुआ मिलता है, गंदगी मिलती है, बहुत ज्यादा डर्ट मिलता है। बट अमेरिका के रेलवे स्टेशन में 19th सेंचुरी, which is 200 years ago, there were still spittoons on the floor so that people can spit their tobacco in them. या डस्टबिन तो है, बट डस्टबिन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और प्लास्टिक के होते हैं। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाट वॉइस इज कमिंग ऑन, बाहर से आ रहा है कोई वॉइस, बट आई होप यू गॉट द मीनिंग। स्पिटून मतलब इस तरह का कुछ कचरा पात्र समझ लो जिसमें वो लोग थूकते थे। तो वो ब्रास के बने हुए आते थे, ब्रास एलिमेंट के, तांबा जिसको हम बोलते हैं। And across the station, a glint of light caught my eye. Glint means glow, glow. एक छोटी सी लाइट जो थी उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया. It caught my eye. It caught my concentration. I started seeing a man was pulling a gold watch from his vest pocket. A man was pulling a gold watch. उस टाइम पर रिस्ट वॉच नहीं होती थी जो आप अपनी कलाई में अपने रिस्ट में पहनते हैं, अपने हैंड में पहनते हैं. People used to carry their watches in their pocket. एक एक स्ट्रिंग होता था और उसी स्ट्रिंग से वो बार बार गोल्ड वॉच को निकालते थे और देखते थे. तो वो जो गोल्ड का जो लाइट था, वो जो ग्लिंट था, वो ग्लो था, उसको देखकर उसकी नजर जो है वो चार्ली की नजर जो है वो उस आदमी की तरफ पड़ी. और वो आदमी क्या कर रहा था? ही वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. अपने वेस्ट की पॉकेट में से, अपने शर्ट की पॉकेट में से वो एक गोल्ड वॉच निकाल के उसमें से टाइम देख रहा था. आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर टुमारो. टुडेज क्वेश्चन इज व्हाई डिड, लिख देता हूं चलो आप लोगों के लिए, आई विल राइट इट डाउन. व्हाई डिड चार्ली, why did Charlie consider Grand Central Station as an exit or way of escape? तो ये आपको लिखना है. मैंने आपको पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है. होम, ऑफिस, स्ट्रेस, टेंशन, वरी, डिप्रेशन, और फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो कैसे अपने आप को एस्केप करते हैं. चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस. आई विल सी यू टुमारो. Until then, complete all your question answers, all your homeworks, all your letters. Bye bye.